Please like, share, subscribe and click the bell icon for latest updates from Bioratna. Find the link for DPP and notes in the description box. It is highly recommended to prepare your own notes while following the lecture. Be assured that your notes will include all points of NCERT as the lectures are very thorough. A revision of previous session is there at the beginning of each new session for every chapter. This will be very helpful for Standard 12 students for a quick catch up with Standard 11 topics during their busy Class 12 schedule. This is equally important for Standard 11 students to maintain continuity in their learning process as well as help prepare a solid foundation. Welcome to Bioratna. Dear students, in our last session we discussed the topic basis of classification from the chapter Animal Kingdom. So our today's topic of discussion is phylum Porifera. Thus, now one by one we will be taking up the different phyla and do their detailed study. So naturally there is a chance of getting the facts mixed up, not chance. ये वाला चैप्टर बच्चों को मुश्किल इसीलिए लगता है कि सारे फैक्ट्स एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगते हैं. Which phylum? The members are acoelomate, which pseudocoelomate, which diploblastic, which triploblastic. The different facts, they all get mixed up. If somehow we know how to make different brackets in your brain so that these things do not get mixed up, तो ये जो हवा है एनिमल किंगडम का ये पूरा खत्म हो जानी है. And for that there are two very important tools. One is Whittaker's basis of classification and one the very last topic which we discussed, that is basis of classification. We are going to do the revision of first before starting Porifera. We will first be doing the revision of basis of the previous topic, that is basis of classification. Be very careful, be very attentive because यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपका पूरा एनिमल किंगडम का चैप्टर की नया आपकी पार लगाने वाली है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. द basis of classification is what we are going to revise. Basis of classification, we are doing its revision. चलो देख ले. See, you have seen that there are this animal kingdom. We have divided it into how many phyla? Phyla और भी है, लेकिन आपने पढ़े हैं 11 फाइलम. What are they? One is Porifera. अभी तक आपको सारे नाम याद हो गए होंगे. Porifera, Cnidaria, also called Coelenterata, then Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, then Arthropoda, then Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and the last, that is Chordata. क्या क्या पढ़ा था आपने इन फाइलम्स के बारे में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में? वन बाय वन वी हैव टेकन अप डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन. क्या थे ये क्राइटेरिया? अकॉर्डिंगली हमने कैसे इन 11th फाइलम्स में देखा था कि
we have put them in which group, why we have kept them in a particular group. Fine. तो phylum, the different criterias, ये सारे अभी यहाँ जो लिखेंगे they are the different criteria. पहला वाला जो हमने देखा था that was level of organization. Level of organization. Second one, it was symmetry. Third one was whether it is diploblastic or triploblastic. Then it was about the coelom. After that, segmentation and notochord. तो ये हो गया segmentation और एक आपने देखी थी that is notochord. Other than that, in your this last table, that table is whole and soul everything. उस टेबल में आपके इसके अलावा उसमें ये नहीं है this notochord is not given and this diploblastic triploblastic is not given, but that is there in the text. Fine. Other than this, the discussion of the digestive system, circulatory system and respiratory system is there. क्या देखा था आपने डिफरेंट फाइलम्स में ये किस तरह के ये कैरेक्टर्स होते हैं? That was it. So, for Porifera, the level of organization is cellular. This is cellular level of organization. That does cellular level of organization does not mean unicellular. Cellular level of organization, all animals are multicellular. Cellular level of organization का मतलब ये होता है बच्चों कि उन सेल्स ने एग्रीगेशन से टिश्यू नहीं बनाया है. They have not formed tissue or organ system. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ एक में ही मिला था, दैट इज पॉरीफेरा. देन दिस निडारिया एंड टिनोफोरा दे वेर ऑफ टिश्यू लेवल. उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल आया था. फिर जैसे आप एस्केलमिन्थिस में पहुंच जाते हो तो यहाँ से लेते हुए ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम ऑल. ठीक. Now symmetry, this porifera here, symmetry is variable. Mostly it is asymmetrical, but there are many other, some groups, some species, they may have symmetry other than asymmetrical, like they may be radial also. So it is, symmetry is variable. These two, their symmetry, this is radial symmetry. आपको ये वेरिएबल याद रखना है, रेडियल यहाँ और ये रेडियल. नाइन्थ वन दैट इज द इकाइनोडर्मेटा का रेडियल है. रेस्ट ऑल आर बाइलैटरल. रेस्ट ऑल प्लैटीहेलमिन्थिस टू मोलस्का, दिस इज बाइलैटरल. देन हेमिकॉर्डेट टू कॉर्डेटा, दिस इज ऑल्सो बाइलैटरल. देखिए बच्चों, इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स है, इसमें से कुछ फाइला है जो आपके लिए अभी बिल्कुल नए हैं, जैसे पॉरीफेरा, निडारिया. यू नो हाइड्रा फ्रॉम इट, बट नाउ यू विल बी नोइंग मेनी मोर फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं जाने हैं. टिनोफोरा इज टोटली न्यू फॉर यू. लेकिन जहां आप प्लैटीहेलमिन्थिस में पहुंच गए, क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थिस का स्ट्रक्चर आपने तो पढ़ा था. प्लैटीहेलमिन्थिस के स्ट्रक्चर में आपने देखा था इस तरह से. अगर मैं एक रफ डायग्राम इसकी बना दूं तो यू कैन सी दैट दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय दिस सिंगल प्लेन इनटू टू हाफ्स. तो प्लैटीहेलमिन्थिस में जहां आप पहुंच गए अपने प्लैनेरिया तक, प्लैनेरिया आपको बता देता है नाउ स्टॉप, अब ये सारी की सारी बाइलैटरल सिमेट्री है सबकी. सिर्फ इकाइनोडर्मेटा मेरी बात नहीं सुनता है एंड इट हैज़ रेडियल सिमेट्री. वैसे इकाइनोडर्मेटा की भी एक बात आपको याद रखनी है कि इट्स लार्वा इज बाइलैटरली सिमेट्रिकल. मेटामॉर्फोसिस के समय, एडल्ट बनते समय
इट हैज़ बिकम रेडियल। तो ये इस प्लानेरिया के मदद से आप बायलैटरल सिमेट्री में रुक जाओगे, कहोगे नाउ स्टॉप, नाउ ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एक्सेप्ट देयर इज वन इकाइनोडर्मेटा जो प्लानेरिया की बात नहीं सुनता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो आपका प्लानेरिया है जिसने आपको यहाँ पे मदद की थी बायलैटरल में, वो यहाँ भी आपकी मदद करेगा। अब डिप्लोब्लास्टिक में पहले वाले 3 मीन्स अदर देन प्लैटीहेलमिंथस, जहाँ आप प्लैटीहेलमिंथस में पहुँचे चौथे में, ऑल बिकम ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अभी तो आप प्लानेरिया की मदद से ही आगे बढ़िए। हम जब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं तो ये फिर से प्लानेरिया आपको कहता है स्टॉप, now I am triploblastic and rest all are also triploblastic, और अभी इकाइनोडर्मेटा भी मेरी बात सुनने लगा है। फाइन, अब आइए सीलोम में। अभी तक आपको जिसने मदद की थी वो कौन था? प्लैटीहेलमिंथस का प्लानेरिया। अब प्लानेरिया नेक्स्ट हेलमिंथ से कहता है कि अब बच्चों को आप थोड़ी मदद कीजिए। तो दिस एस्केलमिंथस, दैट मीन्स नंबर 5, फाइन, इसको पकड़ते हैं हम लोग, ठीक। दिस सीलोम, दिस पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, these all 4 they are a coelomate, they are a coelomate। प्लानेरिया का काम खत्म हुआ, वो अभी ऊपर वाले तीनों के साथ मिल गया, it is a coelomate। Then the fifth one that is Aschelminthus, it is pseudocoelomate, pseudocoelomate है। वो कहता है मैं अकेला pseudocoelomate हूँ, मेरे बाद के जितने भी है 6 से लेके 11 तक all are coelomate, all are coelomate। coelom में हमने क्या पढ़ा? 5th, first you have to learn the name of the phyla in proper sequence। ये हमने आपको पहला पॉइंट यही बताया था कि आपको पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप याद कर लो तो आपकी आधी जंग वहीं खत्म हो जाती है। तो 5th वाला Aschelminthus, it is the only one which has pseudocoelom, उसके ऊपर के सारे किसी में coelom नहीं है। 6th to 11th they all have coelom। Done? Now come to segmentation। segmentation में हम देखते हैं किसके पास segmentation है। ये आपको और आसान पड़ता है बच्चों। कैसे? इसमें सिर्फ 3 नाम याद रखना है आपको। एस्केलमिंथस के बाद है एनेलिडा। शुरू वाले ये 2 हमने प्लैटीहेलमिंथस प्लानेरिया की मदद से पढ़ लिया। सीलोम में आते हैं तो हमने एस्केलमिंथस की नेक्स्ट फाइलम की मदद ली। अब हम उसके बाद वाले की मदद लेंगे, दैट इज एनेलिडा। नेक्स्ट इन द सीक्वेंस एनेलिडा। एनेलिडा में सेगमेंटेशन है। द 6th वन एनेलिडा, इन इट सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। बस 3 नाम याद रखने हैं। पहला कौन? एनेलिडा। और दूसरा कौन? आर्थ्रोपोडा, दैट इज द 7th वन। हियर ऑल्सो इट इज प्रेजेंट। एंड द लास्ट वन दैट इज 11th कॉर्डेटा, हियर ऑल्सो इट इज प्रेजेंट। बाकी के जितने भी हैं यहाँ से यहाँ तक सारे, इन देम द सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। तो ये एब्सेंट हो गया, यहाँ पर भी एब्सेंट हो गया। ओनली 3 यू हैव टू रिमेंबर फॉर सेगमेंटेशन, दैट इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा विच शो सेगमेंटेशन। अब क्या? नोटोकॉर्ड। सिर्फ इसमें से एक ही है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और उसके नाम में ही लिखा हुआ है कि उसके पास कॉर्ड है, दैट इज कॉर्डेटा। सो कॉर्डेटा इज द ओनली वन, द 11th वन विच हैज द नोटोकॉर्ड। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बाकी सारे के सारे इनमें ये एब्सेंट है। अप टू
10th. This is absent. From 1 to 10 it is absent and in the 11th it is present. हो गया? अभी नहीं हुआ है ना. अभी आपको इतना देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे आप सोचते हो कि ये तो रहना ही है किसी में भी, बिना एलिमेंट्री कैनाल के कोई कैसे हो सकता है? बिना हार्ट के कोई कैसे हो सकता है? बिना लंग्स के कोई कैसे हो सकता है? ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बच्चों. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किन फाइलम में है, किन फाइलम में नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच इन अंडरस्टैंडिंग, remembering the different points of the different phyla which you will be studying one by one now in animal kingdom. चलो देख लेते हैं different systems के बारे में भी. इससे पहले इसका एक recap देख लीजिए. Level of organization. Level of organization का मतलब होता है सेल है. Lowest organization, उसने टिश्यू बनाया या ऑर्गन बनाया, organ system बनाया, that is level of organization. Only one is there which shows cellular organization. All animals are multicellular बच्चे, all are multicellular, unicellular का कोई question नहीं है. But are the cells forming tissue or organ? That is the question. So यहाँ पे they show cellular लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉरीफेरा इकलौता है जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है. नेक्स्ट टू दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लैटीहेलमिन्थेस से भी ऑर्गन सिस्टम्स शुरू हो जाते हैं. ऑर्गन सिस्टम रेस्ट ऑल. यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थेस आपको कहता है ऑर्गन सिस्टम मैंने शुरू कर दिया, बाकी सब ऑर्गन सिस्टम ही दिखाएंगे. सिमेट्री में देर आर 3 सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या? सिमेट्री मीन्स that plane passing through any organism, यहाँ गलत हो जाएगी आपकी डेफिनेशन, थ्रू द सेंटर. अगर कोई बायलैटरली सिमेट्रिकल भी है, आप सेंटर से लाइन सेंट्रल एक्सिस से नहीं पास करते हो, कोई भी लाइन नहीं है जो किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दे इक्वल हाफ्स में. सो दैट प्लेन passing through the central axis which can divide the organism in equal halves, that is called its symmetry. Symmetry आपने पढ़ी थी 3 तरह की होती है, एक रेडियल, एक बायलैटरल और एक तीसरे तरह का ऑर्गेनिज्म जिसको किसी भी प्लेन से आप इक्वल हाफ्स में नहीं काट सकते हो. अकॉर्डिंगली ये इकलौता है पॉरीफेरा, यहाँ भी इकलौता था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी इकलौता है कि वो सिमेट्री दिखाता है असिमेट्रिकल. हमने वेरिएबल इसलिए लिखा, कुछ स्पेसीज है पॉरीफेरा के वो रेडियल वगैरह दूसरी सिमेट्री भी दिखाते हैं. रेडियल जो है वो 3 है. सिर्फ 3 नाम अलग से भी याद कर सकते हो, आप बाद में कर ही सकते हो. तो लेकिन ये निडारिया एंड टिनाफोरा ये रेडियल है. नेक्स्ट 2 रेडियल अभी ऐसे याद रखो. और 9th वाला इकाइनोडर्मेटा मीन्स प्लैटीहेलमिन्थेस तक आप पहुंचे. पॉरीफेरा इज द ओनली विच इज असिमेट्रिकल. नेक्स्ट 2 में नेक्स्ट लेवल दे दोगे, नेक्स्ट टाइप का दे दोगे, दैट इज रेडियल सिमेट्री. 2 में जैसे प्लैटीहेलमिन्थेस प्लैनेरिया तक पहुंचे, प्लैनेरिया विल टेल यू स्टॉप, आई एम बायलैटरल, रेस्ट ऑल आर बायलैटरल एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा. देन व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? इसकी भी तो रिवीजन चाहिए ना कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है. जब एम्ब्रियो आपका बन रहा होता है बच्चों, एनी ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, पहले तो जाइगोट डिवाइड करके ढेर सारे सेल बना देता है. ऑल दिस सेल्स आर सिमिलर और टाइप. उसके बाद एक गैस्ट्रुलेशन फेज आती है. गैस्ट्रुलेशन में कोई उन्हें ऑर्डर करता है कि नाउ यू फॉर्म 2 लेयर्स और 3 लेयर्स. अगर ये 2 लेयर बना दे देन डिप्लोब्लास्टिक, DI डाई मीन्स 2, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर बना दिए. एंड वंस दे आर इन लाइन, वंस दे टेक देयर पोजिशन, देन देयर फेट इज डिसाइडेड. देन देयर फेट इज डिसाइडेड. फेट इज डिसाइडेड मतलब कि कौन सा बॉडी ऑर्गन वो बनाने वाले हैं, ये डिसाइड हो गया.
एक्टोडर्म ही है जो आपकी स्किन बना सकता है, एक्टोडर्म ही है जो आपका नर्वस सिस्टम बना सकता है। मेसोडर्म बीच वाला या लास्ट में अंदर में एंडोडर्म नहीं बना सकता। सो लाइक दैट हर लेयर के सेल्स का जेनेटिक एक्सप्रेशन अब कंट्रोल हो जाता है। मैजिक किसने किया? मैजिक किसने उन्हें कहा कि डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो जाओ? सारे सेल्स कैसे मूव करने लग गए, कैसे उन्होंने 3 अलग अलग पोजीशन ले ली, कैसे फिर उनका जेनेटिक एक्सप्रेशन सबका अलग अलग हो गया। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सारे एनिमल्स में कम से कम 2 लेयर बनने ही बनने हैं, मैक्सिमम 3 लेयर बनने ही बनने हैं। कोई ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ 1 लेयर बनेगा। अगर 2 लेयर बनते हैं तो कौन से हैं वो 2 लेयर? दे आर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 बनते हैं तो इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक दूसरा भी लेयर होगा, दैट इज मेसोडर्म। इजंट इट इंटरेस्टिंग बच्चा पार्टी? बायोलॉजी इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो और ये जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को कहते हो ना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। बस इतने सारे टर्म्स हैं, उसे कैसे याद करना है, याद नहीं होते हैं तो फिर नर्वसनेस में वो और उसकी खिचड़ी बनने लगती है। सिर्फ मदद लीजिए इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की और व्हिटेकर का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसकी। आपको इसका पुराना वाला वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने अभी कहा था, ये तो रिवीजन हुआ ना। हियर आई एम इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स इटसेल्फ, तो इससे भी आपको रिवीजन उसकी हो जा रही है और यू विल सी कि अभी पॉरीफेरा पढ़ने में हमें किस तरह से उसकी मदद होने वाली है। सिलोम हो गया। सेगमेंटेशन मीन्स there are some organisms in which the body is externally as well as internally divided into segments. बाहर से भी दिखते हैं आपको ऐसे segments, अंदर से भी उसका division होता है। And there is repetition of certain organs, at least in some segments there is repetition of the same organ. जैसे हमने अर्थवर्म का एग्जाम्पल लेके देखा था कि 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 जो सेगमेंट्स है उसके बीच का जो सेप्टा है, 5 to 6 हम इसलिए कह रहे हैं, 5 और 6 के बीच में एक डिवीजन है, सेप्टा है, उसके साथ अटैच हो जाता है एक ऑर्गन कॉल्ड स्पर्मैथिकी। तो 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मैथिकी आर देयर, रिपीट इन 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। फिर आर्थ्रोपोडा, 3 नाम आपको याद करने हैं सेगमेंटेशन में, बाकी किसी के पास नहीं है। देन आर्थ्रोपोडा ऑल्सो हैज सेगमेंटेशन, अ लिटिल बिट ऑफ लेसर। उसके थोरैक्स 3 डिवीजन में डिवाइडेड है, उसका एब्डोमेन 11 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एंड देन द कॉर्डेट्स। तो ये जो सेगमेंटेशन 6th एनिलिडा में प्रेजेंट है, देन 7th आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है और लास्ट कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। आप कहोगे कहाँ हम लोग सेगमेंटेड है? वी शो इंटरनल सेगमेंटेशन का भी वेरिएशन है बच्चों। सबसे ज़्यादा दिखा दिया एनिलिडा में, हम लोग कहते हैं हाँ बाहर से हमें नहीं पकड़ पाओगे, अंदर में हमारा एक वर्टिब्रल कॉलम है। इट इज़ मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्री, repeatedly 1 vertebra, 2nd vertebra, 3rd vertebra, 4th vertebra, so that our backbone that shows segmentation। तो ये सेगमेंटेशन हो गया। और यहाँ 3 आपको याद रखने हैं, ठीक। लास्ट में नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज अ कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स अ ट्यूब। इट इज अ ट्यूब विच इज डॉर्सली सिचुएटेड, उस ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल पार्ट में सिचुएटेड है और ये मेसोडर्म का बना हुआ है। इट इज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। वो ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होके बाद में नहीं भी रह सकता है, या इट कैन बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। भले वो बाद में रहे चाहे नहीं रहे, अगर वो एक बार उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कभी भी थोड़े भी समय के लिए अगर वो नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट हो, देन इट इज कॉल्ड कॉर्डेटा, कि हाँ उसमें नोटोकॉर्ड है।
कॉर्डेटा के नाम में ही है कि हाँ मेरे पास दिस कॉर्ड इज देयर इन माय बॉडी, रेस्ट में नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो 10th वाला है हेमिकॉर्डेटा, उसके नाम में कॉर्डेटा क्यों आया? Because before these organisms they were wrongly placed in chordata, उसके और एक ऑर्गन को गलती से समझ लिया गया था कि ये नोटोकॉर्ड है, then we placed it under chordata। बाद में जब पता चला कि नहीं, हमें अपनी गलती पता चली, then they were removed from chordata और नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग फाइलम हेमिकॉर्डेटा बना गया जहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। इसके बाद 3 हम लोग देख लेते हैं, 3 सिस्टम्स देख लेते हैं कि किसमें है किसमें नहीं है, तो आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का रिवीजन कंप्लीट होता है। व्हाट अबाउट द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस फाइलम्स? इसका भी आपको सिर्फ प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखना है। दैट इज, फर्स्ट इट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम, next it has to be circulatory system, then it is the respiratory system। सीक्वेंस गड़बड़ाया तो फिर याद नहीं होगा, सीक्वेंस याद रह गया तुरंत आपको याद हो जाना है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन केस ऑफ पॉरीफेरा, पहला वाला, ये मोस्ट प्रिमिटिव है, हमारे एनिमल किंगडम का मोस्ट प्रिमिटिव है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। तो इसके बाद वाले जो 3 हैं, निडारिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। हियर इट इज इनकम्प्लीट, सिर्फ इन 3 में। बाकी यहाँ से लेके टोटल दे हैव complete digestive system, complete digestive system। ठीक, एक बार complete start हुआ तो सब में complete digestive system। What is this complete and incomplete digestive system? Complete is that those organisms in which there are 2 different openings, one for ingestion of food, that is mouth, one for egestion of waste, that is the anus। But in case of incomplete digestive system, there is only one opening which acts for ingestion as well as egestion. That means it acts as mouth as well as anus. So they are more primitive। ये हो गए आपके 3, निडारिया, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस। हो गया दिमाग में रजिस्टर। एस्केलमेंथिस से लेके सारे के सारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। नाउ कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे एनेलिडा से। ये शुरू होगा आपका एनेलिडा, दैट इज द 6th वन। द एनेलिडा, इट हैज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स प्रेजेंट। यहाँ प्रेजेंट किया तो यहाँ से लेके 11 तक सबका ही प्रेजेंट है, सबका प्रेजेंट है। बाकी आपका ये 1 से लेते हुए 5th तक यहाँ सबका ये सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज एब्सेंट। 6 से लेते हुए सबके पास है, लेकिन कुछ तो फर्क है। 1 is having, some have open circulatory system, some have closed circulatory system। किसके पास closed है? closed है ये जो एनेलिडा है, पहला वाला it is having closed one। शुरुआत इसी से, सर्कुलेटरी सिस्टम इसी से शुरुआत है, उससे पहले किसी के पास नहीं था। तो आप बोलोगे एनेलिड में आपको याद है अर्थवम, तो आप बोलोगे अर्थवम आपने तो कमाल कर दिया, आपने शुरुआत भी की, यू आर द फर्स्ट फाइला टू शो द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी में आपने पूरे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बना लिया, बाकी सबके पास ओपन है। यहाँ आपके 7th से लेके मतलब दिस 11th वन सब ये दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड रेस्ट, दैट इज 7 to 9 उन सबके पास है, तो सबके पास है, लेकिन ये बीच वाले जो है इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज्ड,
हार्ट इज अ क्लोज चेम्बर. हार्ट से ब्लड निकला, आर्टरी में गया. आर्टरी दे डिवाइड टू फॉर्म द आर्टेरियोल्स, दैट इज द कैपिलरीज ऑफ आर्टरी. दे आर ऑल्सो क्लोज चेम्बर. क्लोज चेम्बर के बीच में से ही ब्लड फ्लो करता है. ब्लड उन चेम्बर से बाहर नहीं आता है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आर्टेरियोल, वहाँ से फिर आर्टेरियोल से वेन्यूल बनेंगे. वेन्यूल दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन. Everyone is a closed chamber. Then vein bring back the venous blood to the heart. Whereas in open circulatory system, the blood comes out of the heart and then it is everywhere in the body cavity. कोई artery नहीं, vein नहीं, capillaries नहीं. So all the organs in the body cavity, they get directly bathed with blood. स्लो मोशन से धीरे धीरे धीरे, कोई वहाँ पे हार्ट पंप कर करके प्रेशर नहीं दे रहा है, अपने से वो स्लो 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 मूव करते हुए आगे बढ़ते जाता है. तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होती है ब्लड की. ये एक डिसएडवांटेज है. सी, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इस तरह से अब रेस्पिरेटरी में अगर आ जाते हो, लास्ट वाला, यहाँ 6 से लिया था, प्रेजेंट है. यहाँ 7 से लोगे. 7th कौन है? 7th इज आर्थ्रोपोडा, दैट इज प्रेजेंट. तो यहाँ से लेते हुए ये 11 तक सब में प्रेजेंट है. 1 to 6 दैट इज पॉरीफेरा टू एनेलिडा, हियर इट इज एब्सेंट. दिस इज रेस्पिरेटरी. तो इसे आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखने क्यों कहा गया था? आप देखते हो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 5th से स्टार्ट होता है, 5th फाइला. सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट फ्रॉम 6th फाइला. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट फ्रॉम 7th फाइला. तो 5th, 6th, 7th, कभी भी आप बैठे बैठे ऐसे उंगलियों में गिनते जाओ. लेट इट बी अ गेम, नॉट टेंशन. बच्चे बैठो, पहले तो उसका सीक्वेंस में याद हुआ कि नहीं, देखो अचानक से ऐसे खुद से पूछो, विच वन इज द 5th फाइला, विच वन इज द 9th फाइला, विच वन इज द 2nd वन. उसके बाद कोई भी एक सिस्टम ले लो, ये 5th से स्टार्ट होता है कि 6th के 7th से. तो खुद से बोलो कि पहले मुझे इसे प्रॉपर सीक्वेंस पे अरेंज कर लूँ. पहला डाइजेस्टिव, फिर सर्कुलेटरी, फिर रेस्पिरेटरी. डाइजेस्टिव है तो 5th से स्टार्ट है, सर्कुलेटरी है तो 6th से स्टार्ट है, रेस्पिरेटरी है तो 7th से स्टार्ट है, आर्थ्रोपोडा से. हो गया. ऐसे इसे गेम बनाइए, गेम बनाइए, आगे बढ़ते चलिए. कब ये चैप्टर खत्म हो गया आपको पता नहीं चलेगा, और कितने सारे एनिमल्स से आपकी पहचान हो जाएंगी जिसे आप जानते भी नहीं हो. So that was our revision. Now we can start with our study of Porifera. The first phylum, the most primitive phylum of animal kingdom. This Porifera, the name Porifera derives from the fact that their whole body has many pores. पूरे बॉडी पे उनके बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं. So their body has many pores. Second point, ये जो Porifera है, its common name is sponges. Its common name is sponge. Is its common name sponge. ये spongy है, spongy and it absorbs water. और उसे जैसे आप स्क्वीज करते हो तो उसमें से वाटर निकलता है. They are spongy and they are marine. They are marine. ये सारे के सारे 100% मरीन हैं and they are most primitive. हमारे एनिमल किंगडम के सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव. जैसे लाइफ ओरिजिनेटेड इन द ओशंस. बच्चे, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, फिर उसमें से यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, देन मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू द लैंड. लेकिन ये माइग्रेट नहीं हुए, ये वहीं के वहीं रहेंगे सारे के सारे समुंदर में, क्योंकि सारे के सारे सेसाइल जो है, दे आर ऑल सेसाइल. सेसाइल मीन्स दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव एंड दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. ज़मीन पे हो समुंदर के,
रॉक्स पे हो, दे आर अटैच टू सम सबस्ट्रेटम एंड दे कैन नॉट मूव, दे आर सेसाइल। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि पॉरीफेरा की बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। देयर कॉमन नेम इज स्पॉन्ज, दे आर स्पॉन्जी एंड दे एब्जॉर्ब वाटर। जानते हो बच्चों, पहले स्पॉन्ज के बॉडी को एक काम में लाया जाता था। ड्यूरिंग टेकिंग बाथ, ड्यूरिंग बेदिंग, दे वेर यूज टू क्लीन द बॉडी सरफेस। उससे बॉडी को स्क्रब करते हुए क्लीन किया जाता था। नेचुरली अभी उसे यूज़ नहीं किया जाता है। एंड दीज आर द स्पॉन्जेस विच यू हैव इन योर वॉशरूम्स, दे आर आर्टिफिशियल मटेरियल्स। आर्टिफिशियल मटेरियल से उसके सब्सटीट्यूट किया गया है पहले, लेकिन इन्हीं की बॉडी से स्पंजेस बनते थे विच वेर यूज टू clean the body surface. They are all marine, most primitive. इसे जुड़ते हुए ऐसे याद रखोगे कि ये प्रिमिटिव है पॉरीफेरा, ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका, सबसे प्रिमिटिव है। लाइफ तो सबसे पुरानी वाली, सबसे पहले लाइफ स्टार्ट ही हुई थी समुंदर में, तो ये समुंदर में ही रह गया। इसलिए रह गया क्योंकि ये सेसाइल है, क्योंकि ये सेसाइल है। अब फर्दर हम जब आगे बढ़ते हैं बाकी इनके कैरेक्टर्स पढ़ने में, एज इज़ द प्रॉब्लम कि सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो जाए, फॉर दैट व्हिटाकर्स क्लासिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विल हेल्प यू इमेंसली। तो देखें कैसे। सी, दिस इज व्हिटाकर्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिटाकर्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें से फिर हम देख लेंगे कि पॉरीफेरा में कौन सा है। देन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच यू स्टडीड, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी जस्ट रिवाइज्ड ऑल्सो, एंड देन वी विल सी कि पॉरीफेरा में इसमें से कौन सा है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में स्टार्ट हुआ था लेवल ऑफ, फर्स्ट वन वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वाज सिमेट्री, then it was whether they are, the organisms are diploblastic or triploblastic. Then about their coelom, coelom present absent, इस तरह से याद हो जाना चाहिए ना बच्चों कि जैसे आप पढ़ते हो लिखते हो तो ऐसे वो एनसीईआरटी का एक एक पेज दिमाग में ऐसे आते जाना चाहिए कि अभी ये कंप्लीट हो गया, अब मैंने पन्ना पलटा। इस तरह से याद हो जाएगा आपका। याद होने के बाद फिर हम फर्दर रिवाइज करते जाते हैं ना, तो पूरे अच्छे से वो जेरोक्स की तरह बन जाता है। सो दिस वाज सीलोम, तो प्रॉपर सीक्वेंस भी आपका वहीं रह जाता है। तो दिस इज सीलोम। आफ्टर दैट इट वाज अबाउट सेगमेंटेशन एंड देन नोटोकॉर्ड। इसके अलावा आपका एक टेबल भी तो है, उस टेबल में हमने वो टेबल को भी तो मेंशन करना पड़ेगा, उसके बगैर फिर आप इसके सारे कैरेक्टर्स थोड़े लिख पाते हो। इनमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें है, नहीं है, तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं ABC। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देख लें पॉरीफेरा में कौन से हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर, बहुत सारे, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्यूलर, नो डाउट अबाउट दैट, बट हियर द सेल्स आर नॉट फॉर्मिंग टिश्यू। सो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री क्या थी इसकी? सिमेट्री, दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल, मोस्टली असिमेट्रिकल, रेडियल वगैरह भी दिखा सकता है। डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो चूज द वन विच इज सिंपलर वन, सो इट इज डिप्लोब्लास्टिक। सीलोम है कि नहीं है? नहीं है। हियर दो डू नॉट हैव, सो दिस इज असीलोमेट, दिस इज असीलोमेट। सेगमेंटेशन है कि नहीं है? नहीं है।
सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, नहीं है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। अब यहाँ आ जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि नहीं है, नो, एब्सेंट। तो कैसे काम चलता है? जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो कैसे काम चलता है? दैट का क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड। वहाँ हम देखेंगे कि दे हैव वन वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम जो इन तीनों काम में मदद करता है, डाइजेशन भी, रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रीशन भी। फाइन, इतने पॉइंट्स यहाँ आपके हो गए। ठीक, कोई भी फाइलम आप स्टार्ट करते हो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और व्हिटाकर का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जितने कैरेक्टर्स है उसको पहले आप बोल देते हो। उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें कुछ पॉइंट आप एक्स्ट्रा बोल जाओगे, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। पहले तो आपको कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे हो कि डिफरेंट पॉइंट्स में भूलूं नहीं, ये सारी दुविधाएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी, एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी आपको, फिर आप फ्लो में आ जाते हो। उसके बाद तो आपको सिर्फ उस फाइलम के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स बताने हैं। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर मीन्स जो कैरेक्टर उस फाइलम में है और किसी में नहीं है। जैसे पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम है और किसी में नहीं है। तो आइए देख ले अब व्हिटाकर का बेसिस। व्हिटाकर में है बच्चों, वन इज सेल टाइप, वन इज cell wall, then it is nuclear membrane, then it is nuclear membrane. After that it is body organization, and the last one is the type of nutrition. Cell type means prokaryote है या eukaryote है। all animals are eukaryotic, so the porifera is also eukaryotic। ये सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये बहुत छोटी चीज़ें रह गई है, इसे हम मेंशन नहीं करेंगे। प्लस सेल वॉल एनिमल्स में नहीं रहता, इतनी छोटी सी चीज़ जो पहले बहुत सारे डिटेल्स पढ़ते हुए हमारे पास बड़ी बात थी, अब ये छोटी बात है। सेल वॉल और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हम मेंशन यहाँ नहीं करेंगे। जब यूकैरियोटिक बोल दिया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसे भी वो आ गया। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इसका सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो दिस इज सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। न्यूट्रिशन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, तो ये भी हेटेरोट्रॉपिक है। फाइन, आप शुरू ही करते हो कि ये जो पॉरीफेरा है दिस इज यूकैरियोटिक, it has cellular organization, it is heterotropic। यहाँ cellular organization repeat हो रहा है। it is asymmetrical, diploblastic, coelomate, segmentation absent, notochord absent, digestive, circulatory, respiratory system absent। एक दो एक्स्ट्रा ही पॉइंट आ गए हैं आपके, कम नहीं हुए। आपका दिमाग अब एक चैनलाइज हो जाएगा, वो सारे पॉइंट्स अब नहीं भूलने वाला है। ठीक है, other than that we studied that it is sessile, has spongy body, it has pores all over the body, it is marine, it is very primitive, all are marine except one। एक ही है, only one which is fresh water, एक है जो फ्रेश वाटर है। उसे कैसे याद करना है, लास्ट में हम डायग्राम देखेंगे, उस समय एक वो याद रखने का एक तरीका है, दैट यू विल से। एंड दे आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड दे हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम वी मूव टू देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। क्या कैरेक्टर्स है पॉरीफेरा में? नाउ यू नो दैट दिस पॉरीफेरेंस दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नाइदर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन काम तो चल रहा है ना? कैसे काम चल रहा है? फॉर दैट दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, दे हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम। दिस इज इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स बच्चे। वाटर कैनाल system. What is this water canal system? What is the body plan of these poriferans? Let us see. देखिए, ये हो गई एक पॉरीफेरन की बॉडी, ये इसकी बॉडी है, और सपोज दिस इज इट्स बॉडी वॉल, ये इसकी बॉडी वॉल है।
और ये नीचे यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच है, सबस्ट्रेटम से अटैच है। नाउ इट्स बॉडी हैज़ मेनी पोर्स, इस तरह से उसके बॉडी में ढेर सारे पोर्स है। आई एम शोइंग 3 ऑन ईच साइड। तो ये जो पोर्स है, दिस पोर्स दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। ये हो गए ऑस्टिया। फिर ये ऑस्टिया दे लीड टू अ बिग कैविटी। दिस बिग कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। पानी जो है इस ऑस्टिया से होते हुए वाटर इट एंटर्स इनटू द बॉडी। पानी ऑस्टिया से होते हुए अंदर जाता है, तो सारा पानी कहाँ आएगा? स्पॉन्जोसील में। वंस इट एंटर्स स्पॉन्जोसील, फिर ये इस तरह से, हियर देयर इज वन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम। इस ऑस्क्यूलम से होते हुए ये जो यहाँ अंदर पानी आया था, ये यहाँ से बाहर चला जाता है। That is the direction of water flow. It is entering through the ostia. It comes into the spongocoel. From the spongocoel, it moves out. ये डायरेक्शन लेने में इसे कौन से सेल्स है जो मदद कर रहे हैं देखने के लिए, चलिए हम देखें। इसका थोड़ा सा पार्ट इतना मैग्नीफाई करके देख लेते हैं कि इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स क्या है। सो हियर वी आर ड्रॉइंग द सेम थिंग इन मैग्निफिकेशन। ये है इसकी बॉडी वॉल, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑस्टिया। सो दिस इज ऑस्टिया। ये इनर साइड में ये इसकी बॉडी कैविटी है। सो दिस साइड इट इज स्पॉन्जोसील, दिस इज स्पॉन्जोसील एंड दिस आर द ऑस्टिया। ये उसकी बाहर की बॉडी कवरिंग हुई। दिस हैज मेनी दिस सेल्स, दिस is covered by this outer layer of cells. These are called pinacocytes. ये जो cells है they are called pinacocytes. तो इसीलिए उसकी जो कवरिंग बनी that is pinacoderm. These cells are pinacocytes. तो पूरी बॉडी की जो कवरिंग होगी pinacocyte से बनी है, cyte means cell. So the whole body covering it is called pinacoderm. अब ये अंदर की तरफ में कुछ स्पेशल तरह के सेल होते हैं। दीज सेल्स दे आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स। ये जो कोएनोसाइट्स है इसमें एक सर्कुलर बॉडी होती है इसकी बच्चों। दिस इज कोएनोसाइट ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स, क्योंकि इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसे कॉलर बना हुआ है। एंड देयर इज वन फ्लैजेला। There is one round or oval body above which there is this collar and there is this flagella. ठीक, कहाँ पे प्रेजेंट है ये सारे यहाँ, ये this is the round body, this is the collar and flagella. इस तरह से ये सारे यहाँ अरेंज है। These are the कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स, इनका दो काम है बच्चों। एक तो इसके जो फ्लैजेला है ना, इसकी मूवमेंट दिखा देते हैं ऊपर की ओर। क्या होगा इससे? ऐसे ऐसे करते हुए वो जो मूव करेंगे उससे क्या होगा, उससे ये जो पानी यहाँ से एंटर किया है वो ऑस्क्यूलम की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ से वाटर इज कमिंग इनसाइड। दूसरे कलर से लिख दें, स्पॉन्जोसील भी ब्लैक, ये उसमें मिक्स हो जानी है। सो दिस इज द वाटर। ये वाटर इन फ्लैजेला के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से ये ऊपर की ओर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जानी है। सो हियर दीज आर पिनाकोसाइट्स, हियर इनवर्ड्स दे आर कोएनोसाइट्स। आपके एनसीईआरटी में लिखा है द कोएनोसाइट्स दे लाइन द स्पॉन्जोसील कैविटी। इसके अलावा दे ऑल्सो लाइन द कैनाल्स। और फिर यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे ये सेल है जिससे होते हुए ये पोर बना हुआ है। सो दीज आर द पोरोसाइट्स। फाइन।
ये जो अंदर का स्पेस है, यू नो दैट पॉरीफेरेंस आर डिप्लोब्लास्टिक, तो ये उसकी अंदर की स्पेस, ये जो है दिस इज असेल्यूलर, सेल से बना हुआ नहीं है। दिस यू नो दैट वो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच की जगह होती है, उसे हम कहते हैं मेसोग्लिया। लेकिन मेसोग्लिया वर्ड वो निडारियंस के लिए यूज होता है बच्चों, यहाँ हम उसे मेसोहाइल कहते हैं, मेसोहाइल। फाइन, क्या पढ़ा? दिस इज द बॉडी प्लान. The whole body has many pores, that's why it is called porifera. These pores are called ostia. The ostia leads into a big cavity called spongiocele, and the spongiocele, it has a one opening outside, that is osculum. पानी ostia से अंदर आता है और osculum से होते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर की ओर जो सेल्स है कवरिंग, दैट इज पिनाकोसाइट्स, और अंदर की ओर जो सेल्स है दे आर द कोएनोसाइट्स। और ये जो मेसोहाइल है अंदर में, इसमें प्रेजेंट है बच्चों इसका एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब क्या? सी, ये नाखून देख रहे हो, बाहर की ओर है हार्ड स्ट्रक्चर हमारा, दिस इज अवर एक्सोस्केलेटन। नाखून, दिस इज एक्सोस्केलेटन। जबकि ये जो बोन्स है बॉडी के अंदर है ना, दैट इज अवर एंडोस्केलेटन। बॉडी के अंदर जो स्केलेटन हो उसे कहेंगे एंडोस्केलेटन। तो इनमें जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है दैट इज स्पाइक्यूल्स, ऐसे नीडल शेप, नीडल की तरह से, एकदम नीडल की तरह चुभने वाले भी, नीडल शेप्ड, दिस नीडल शेप्ड वन, दे मे बी बाइफर्केटेड ऑल्सो, इस तरह से वो ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सो दीज आर द स्पाइक्यूल्स, ये हो गए उसके स्पाइक्यूल्स। और इसके अलावा होता है स्पॉन्जीन फाइबर, ये फाइब्रस है, दिस इज स्पॉन्जीन, दिस वाज स्पाइक्यूल एंड दिस इज द स्पॉन्जीन। स्पॉन्जीन, स्पाइक्यूल और स्पॉन्जीन दोनों मिलके बनाने वाले हैं उसका एंडोस्केलेटन, दिस इज एंडोस्केलेटन। So spicules, the spicules, they are made up of either it is calcium carbonate, तो या तो वो कैल्शियम का बना हुआ है या वो सिलिका का बना हुआ है। Whereas the spongine, they are made up of protein. Spongine are made up of protein. तो इसके मेसोहाइल में प्रेजेंट है इसका एंडोस्केलेटन, दैट इज स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जीन, जिसकी मदद से वो ऐसे इरेक्ट खड़ा है। ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, हमें वाटर कैनाल सिस्टम कैसे डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। अंदाजा तो आपको हो ही गया, पानी ऐसे अंदर आया, द वाटर इज कंटेनिंग सो मेनी फूड पार्टिकल्स, तो उन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट जो किया जाता है, दिस डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। यहाँ कुछ नया है आपके लिए, दिस डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब अब इसके पास तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ना कि वो स्टमक के वॉल से ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे और फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ये जो कोएनोसाइट्स है बच्चे, इसका एक काम तो हो गया वाटर की मूवमेंट, वाटर अंदर भी आए और वाटर ऑस्कुलम से बाहर भी निकल जाए, ये डायरेक्शन देना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका है, ये डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर मतलब वो जो छोटे फूड पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर चले जाते हैं। इंट्रासेल्यूलर सेल के बाहर ही है, सेल ने उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस रिलीज किया, नॉट लाइक दैट। इट एंटर्स, द फूड पार्टिकल्स आर टेकन इन फूड वैक्यूल, जैसे अमीबा में बनता है उस तरह से इसमें भी फूड वैक्यूल्स बनते हैं, उसके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है और वेस्ट मैटर रिलीज हो जाता है। दैट वेस्ट मैटर वो यहाँ से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद कर ली वाटर कैनल सिस्टम में। एट द सेम टाइम द वाटर विच हैज एंटर्ड, दिस वाटर इज रिच इन ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीजन इन लोगों ने ले लिया और उसका कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने पानी में रिलीज कर दिया और वो पानी तो कंटिन्यूस बाहर जाते रहता है। इस तरह से though it is not having any systems, digestive, circulatory or respiratory, still water canal system इन सब चीजों में मदद
करता है। अब हमारा सिर्फ बचा इसका रिप्रोडक्शन। चलो देख ले हाउ डू दिस पॉरीफेरन्स दे रिप्रोड्यूस, एंड देन वी विल सी द डायग्राम्स। डायग्राम देखते हुए लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम याद रखेंगे कि द वन विच इज़ नॉट मराइन बट फ्रेश वाटर, इकलौता जो है उसे आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि नाम कुछ एक जैसे हैं, यू स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, तो उसमें से कौन सा? लेट अस सी। नाउ वी सी द रिप्रोडक्शन इन पॉरीफेरा। रिप्रोडक्शन के पॉइंट तक पहुंच गए बच्चों, तो समझ लो अब उस फाइलम के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, एग्जाम्पल देके खत्म हो जाता है। सो द reproduction in porifera, this is what we are going to study. ये asexually भी reproduce करता है। Asexually it can reproduce by fragmentation. It reproduce by fragmentation. अब देख लें इसकी sexual reproduction. This is the one asexual. Second is sexual reproduction. Sexual reproduction बच्चे, sponges are hermaphrodite. Hermaphrodite means hermaphrodite, नया है वर्ड तुम्हारे लिए। Hermaphrodite. Hermaphrodite means the same individual is male as well as female. Means it is producing male gamete as well as female gametes. So they are hermaphrodite. Same individual produces both types of gametes. Both types of gametes. ठीक, और क्या? gametes का fusion होगा, that is called fertilization. This fertilization, it is internal. Fertilization is internal. ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर वाटर मीडियम में हो रहा है, no. Fertilization is internal. उसके बाद जो लार्वा बनता है एक, द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब अगर एक इंटरमीडिएट स्टेज भी बनती हो जहाँ पे एक लार्वा बने जो एडल्ट जैसा दिखता नहीं हो, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, देन द डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो बच्चा पैदा होता है, इट इज मॉर्फोलॉजिकली सेम टू द एडल्ट। यहाँ the larva is morphologically distinct from the parent. So development is indirect. That means larva is morphologically distinct from or different from the, उसका जो पेरेंट है उससे उसकी बॉडी अलग दिखती है। देन इट ग्रेजुअली मेटामॉर्फोसिस इनटू द एडल्ट स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जांपल्स हम डायग्राम के साथ देख लें। फर्स्ट डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चर अभी जो आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? वाटर कैनाल सिस्टम देखते समय। सो दिस इज साइकॉन, दिस इज साइकॉन ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा। दिस इज साइकॉन ऑल्सो कॉल्ड स्काइफा, मरीन है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। दूसरा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसका, ऐसे, दिस इज द, और ये ऐसे, ये उसके बॉडी का पार्ट नहीं है। दिस इज इट्स बॉडी विच इज हैविंग मेनी ऑस्टिया, ये सारे आप पोर्स दिखा दे रहे हो, एंड दिस इज द सबस्ट्रेटम। इसमें सबस्ट्रेटम से, रॉक से ये जुड़ा हुआ है और ये उसकी बॉडी है, एंड दिस आर द ऑल ऑस्टिया विच यू आर शोइंग। फाइन, कौन है ये? दिस इज यू स्पॉन्जिला, दिस इज यू स्पॉन्जिला, दिस इज ऑल्सो मरीन। यू स्पॉन्जिला, दिस इज मरीन, दिस इज मरीन। रिमेंबर वन थिंग, यही यू स्पॉन्जिला है, ऑल्सो कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि इसी की बॉडी से स्पॉन्ज बना के उसी से बॉडी स्क्रब करके क्लीन की जाती थी। नाउ अंडर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट अभी आर्टिफिशियल नॉयलॉन का मटेरियल यूज होता है। नाउ द लास्ट वन, द फ्रेश वाटर वन। ये जो फ्रेश वाटर जैसा है, इसकी बॉडी है बच्चों, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे है, और
इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक, दिस इज स्पॉन्जिला और यही है इक्लोता फ्रेश वाटर। दिस इज द फ्रेश वाटर वन। फ्रेश वाटर कैसे याद रखोगे? फिश जैसा दिख रहा है ना, फिश जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, इनके जैसा नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे कि ये फिशेज आर मोटाइल, कि ये इसने कहा चलो बाकी सब लोग आप समुंदर में हो, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ फ्रेश वाटर में। इट इज फ्रेश वाटर, रेस्ट ऑल आर मरीन। इतना ही तो था। दैट वॉज पोरिफेरा। आई होप दिस सेशन वॉज not just useful but interesting also. See you all again बच्चों on Monday 2 p.m. with 2 phylums Cnidaria and Ctenophora. Hopefully you have liked the video. Then please like, subscribe and hit the bell icon to get all latest updates.